Hello friends, welcome to your become first class of statistics. So we're going to start the statistic topic for the statistic and the use in the day-to-day life of statistics and why we require the statistic, what is the use of statistics that we're going to study in this topic. So for statistic, let's say आप लोग जब भी कुछ चाहिए, कुछ डाटा चाहिए हमारा पॉपुलेशन के लिए, हर एक डाटा का रिक्वायरमेंट है. सो हर एक कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट फिगर्स को प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. सो जैसे स्टैटिस्टिक पहले शुरुआत हुआ एक लैटिन वर्ड से, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टाटस. सो स्टेटस का मीनिंग क्या है और इससे स्टैटिस्टिक्स से कैसे शुरुआत हुआ. स्टेटस मतलब अब एक एग्जांपल ले लीजिए एक किंग्स का. सो किंग्स का क्या होता है, उसे हम लोग का क्यों स्टेटस कहते हैं, क्यों उसका रिक्वायरमेंट है. उसके पास बहुत सारे मिनिस्टर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो उसके अंडर काम कर रहे होंगे, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक स्टेट को, तो उसी हिसाब से उसका स्टेटस बढ़ता है. तो वो स्टेटस जानने के लिए हमको क्या क्या डाटा चाहिए, हम लोग उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना आदमी लोग हैं, वो सारा हम लोग चेक करेंगे. उसी हिसाब से हम लोग करेंगे कि उसका स्टेटस कैसा है, ठीक है कि नहीं. तो ठीक उसी तरह बाय ग्रोइंग द स्टैटिस्टिक वर्ड वाज इम्प्रूव्ड. सो इन इंडिया इस 2000 years back the statistic is used and you can say it's a byproduct for the administrative department of India. Why it's a byproduct? In every calculation, in every data, we require the use of statistics for collection of data, for facts and figures and analyzing them. We call it statistics. So first, let me write the definition of statistics. Statistic means collection, data presentation, analysis and interpretation. The same in the form of data or facts or you can say figures. So इसका मीनिंग क्या होता है. फर्स्ट वी नीड टू कलेक्ट, then we need to present. Why data presentation required? The last two part was analysis and interpretation. For before we understood these things, we need to know what is data, because before start statistic, the most important thing was to data. For collection of proper data, then we need to analyze the same. We call it statistics. So generally, data are in two types. One is primary data and another one is secondary data. Okay, so what is primary data and what is secondary data? For primary data, we normally say is a raw data. What do you say? Raw data, or you can say the data which was collected for the first time. ओके, जो डाटा हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके कलेक्ट करते हैं प्राइमरीली, उससे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा, जो कि सबसे पहले हमने निकाले. सेकेंडरी डाटा है जो कि यूज डाटा है, डाटा ऑलरेडी इन यूज्ड फॉर्म, जिसको हम लेके एनालिसिस करेंगे. सो इस डाटा को लेके नॉर्मली डाटा क्या होता है, इन सिंपल टर्म्स collection of facts and figures, or you can say in other words collection of informations.
इस सब को हम लोग बोलते हैं डाटा। तो फर्स्ट थिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, वी नीड टू कलेक्ट द डाटा, देन आफ्टर कलेक्टिंग वी नीड टू presentation the data in a understandable form, because if you present the data in understandable form, then only it can be used for decision making and for future analysis. Okay, so first thing was data, then data is two parts, primary data and secondary data. You can write this, then we will start how data presenting to our requirement, then we will do the analysis part. So, okay, so let's start. So once data collection, we need to present the same. So how will present the data? Let's write presentation of data. First thing, why you require the presentation of data? Because once we collected the data, if we collected raw data, from them we need to know what the required data, what the data is used for preparing, for analysis and for decision making. From out of that we need to take exact data, what's the requirement. So हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैं कुछ डाटा कलेक्शन करता हूँ, let's say population of India, or you can say growth of India for past 10 years. So हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि इंडिया का ग्रोथ रेट क्या रहता है फास्ट 10 इयर्स के लिए और क्या क्या हमको चाहिए। हम लोग जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे इसमें, उस सारे डाटा को लेके उसमें से कुछ चीज हम लोग सेग्रीगेट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल ले लो, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ये सारा डाटा हर ईयर का इंडिया का ग्रोथ रेट हमको लेंगे। सो पहला ईयर अगर 10%, 30%, 20%, 40, लेट्स से 50%। सो अगर हम लोग ये ट्रेंड को दिखेंगे, हम लोग एक्चुअली एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है। मैं ये सिर्फ 5 ईयर का लिया हूँ। सो इसको हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, हर एक महीने का, जैसे इसका हम लोग पहले ले लेंगे एवरेजली, तो उसका क्या कहते हैं, एवरेज ग्रोथ रेट। एवरेज ग्रोथ रेट। सो ये 5 साल का हमें डाटा को एनालिसिस करना है। कैसे करेंगे, मैं इस सब का एवरेज लूंगा। जैसे फर्स्ट ईयर का 10% है, 11 का 30, 12 का 20, 13 का 40, ये 50, ये तीनों मिले कितना आता है 150। सो 150 डिवाइड बाय 5। सो वी कैन से ऑन एन एवरेज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वुड बी 30%। सो ये जो डाटा है इसे हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर इस डाटा को हम लोग को प्रेजेंटेशन करना है। तो प्रेजेंटेशन क्यों चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप लोग को डाटा सही से प्रेजेंट नहीं हुआ तो आपका कैलकुलेशन, उसके कंक्लूजन एंड एनालिसिस और उस सब को हम लोग कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, उस सब के लिए मेन पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, कि जो डाटा आप सबने निकाला उसका सही तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो प्रेजेंटेशन हम लोग किस किस फॉर्म से करेंगे, क्या क्या चीज प्रेजेंटेशन में आएगा, कौन सा टाइप है, वो अभी हम लोग शुरू करेंगे। चलो, सो अंडर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन नॉर्मली। वन इज tabular form and another one is graphical form. So presentation of data.
ओके, सो हम लोग डाटा को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक होगा टेबुलर, जो कि इन सिंपल टर्म यू कैन से इन टेबल फॉर्म। सो हम लोग टेबल के हिसाब से फॉर्म कर सकते हैं। और एक तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्म। जनरली ग्राफिकल फॉर्म में आपका इधर आप ग्राफ के हिसाब से या कुछ चार्ट के हिसाब से आप लोग डाटा को प्रेजेंट करना है, ये बस प्रेजेंटेशन है। तो इससे हमारा फायदा क्या होता है, इसको देख के हम लोग अपना डिसीजन या इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है ये सब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, सो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए फिर टेबुलर फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक आपका आएगा इंडिविजुअल सीरीज, एक आपका आएगा ग्रुप। ठीक है, सो ये जो फॉर्म से प्रेजेंटेशन का पहले जो इंडिविजुअल सीरीज आएगा इसमें क्या क्या आएगा, फिर ग्रुपिंग सीरीज में क्या क्या आएगा। जब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, लेट्स एक एग्जांपल, हमने एक ट्यूशन स्टार्ट किया। पहले मेरे पास 4 स्टूडेंट थे, तो हमने क्या किया, तभी हमारे पास अगर 4 स्टूडेंट है तो बहुत डाटा बहुत कम है। तो इसको हम लोग एनालिसिस करने के लिए ये हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग इंडिविजुअल सीरीज यूज करते हैं। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, जो कि डाटा का क्वांटिटी लेस रहता है, और यू कैन से पॉपुलेशन वाइज इट विल बी कम और क्वांटिटी वाइज इट विल बी लेस ओनली। ओके, दैट वी कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। फॉर ग्रुप सीरीज we can say if the requirement of data was more, or you can say more than the series, that we can divide it into grouping series. So first he wrote down this form, then I will describe the grouping series and the graphical forms. ओके, चलो फर्स्ट स्टार्टेड विथ ग्रुपिंग सीरीज। सो ग्रुपिंग सीरीज को मेनली हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी distribution series. Okay, so again the grouping series was divided into 2 parts. एक आता है आपका ग्रुप डाटा, एक आता है अनग्रुप डाटा। ठीक है, सो हमें इस सब को डिवाइड क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, जो भी हम लोग प्रेजेंट करेंगे वो एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आना चाहिए। तो वो अंडरस्टैंड फॉर्म में लाने के लिए हमको हर एक पार्ट को अपने अपनी तरीके से डिवाइड करना है। अगर मेरे पास कम स्टूडेंट है तो मैं यूज करूंगा इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि डाटा का जो क्वांटिटी है वो लेस है। अगर मेरा डाटा क्वांटिटी मॉडरेट है, मतलब 10 या 12 या 15 स्टूडेंट्स है, तो हम लोग उससे अनग्रुप डाटा में डिवाइड कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे मेरा जो स्टूडेंट्स है वो 100 तक गए, तो उससे हम लोग ग्रुप डाटा में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये नथिंग बट डिपेंडेंस अपॉन डाटास क्वांटिटी। अंडरस्टूड? यस। सो फर्स्ट थिंग, आप लोग का जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये कुछ इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सोचो मेरे पास 1 से 50 तक स्टूडेंट्स है टोटल, मैं इसको इंडिविजुअल सीरीज में प्रेजेंट कर सकता हूं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी प्रेजेंटेशन कर सकता हूं। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं 1 से 50 तक इंडिविजुअल वाइज लिखूंगा तो मुझे उसको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होगा और एग्जैक्ट डाटा फाइंड करने में भी दिक्कत आ सकता है, और हमें कुछ चीज मिसिंग होने का भी डर रहता है। इसीलिए डाटा की क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग उससे डिवाइड करते हैं अपने अपने तरीके से। अगर कम डाटा है तो आप लोग उसे इंडिविजुअल सीरीज में डाल दो, अगर थोड़ा ज्यादा डाटा है
तो वो आएगा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। उसमें भी डाटा का साइज के हिसाब से दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। एक आपका आएगा अनग्रुप्ड डाटा, फिर एक आएगा आपका ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो अभी हर एक सीरीज का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं 3 सीरीज यहां पे लिखता हूं। फर्स्ट वन विल बी योर इंडिविजुअल सीरीज। देन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका दो पार्ट है, एक है अनग्रुप्ड डाटा, द नेक्स्ट वन ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, ये आपका डाटा प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, अगर मेरे पास जो डाटा है वो क्वांटिटी लेस है, लेट्स से मेरे पास बस 4 लोग हैं, तो मैं इसको ये सीरीज में डिवाइड कर सकता हूं। और इन सब का कुछ मार्किंग अगर हम लोग लेंगे 0 से 5 तक, लेट्स से ये 4 लोग हैं, तो हमको एनालिसिस हो गया। पहला वाला जो है वो नील लिखा है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका है मार्क्स। ठीक है, सो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, जो स्टूडेंट का क्वांटिटी और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो लेस रहते हैं, तो हम लोग उसे नॉर्मल एज ए सीरीज में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और हमको पता भी चल जाएगा देखने में कि कौन सा क्या क्या मार्क लाए हैं, क्या क्या है। ठीक उसी तरह अगर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाता है 20 या 10 या 15 तक, तो उससे हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका क्या होगा, हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो होता है रिपीटेशन। इसका मतलब है अगर हमारा स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट डाटा होता है तो हर एक स्टूडेंट का एक ग्रुप हो जाता है, जिसमें हम लोग उसको हर एक ग्रुप में डाल के उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वी टेकिंग देम एज इंडिविजुअल, विल मेक देम ए ग्रुप एंड विल टेक द डिसीजंस। ठीक है, चलो सेम सीरीज मैं ये लेता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास 20 स्टूडेंट है, ठीक है, नहीं 50 स्टूडेंट है। मार्क्स विल बी आउट ऑफ 50, ठीक है। तो टोटल है 15 स्टूडेंट्स, 15 10 10। उस जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स है, लेट्स से 30 45, you can say 20 49। इसका मतलब क्या है, टोटल आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स और आउट ऑफ 50 मार्क्स, हमारा 15 स्टूडेंट का रेंज जो है वो 30 के अंदर है। तो 50 स्टूडेंट क्या करते हैं, 30 मार्क्स लेकर आते हैं एग्जाम में, और बाकी 15 स्टूडेंट 45 मार्क्स, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट 20 मार्क्स, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स 49 मार्क्स। सो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो प्रॉपर गुड स्टूडेंट है वो बस 10 ही स्टूडेंट्स है जो कि गुड मार्क लेके आते हैं। देखो पहले हमारा इंडिविजुअल सीरीज 4 लोग थे, तो हमने डायरेक्टली मार्क का डिस्क्रिप्शन किया, पर जब भी मेरा स्टूडेंट का डाटा इंक्रीज हुआ 4 से 50 तक, तभी मैंने फिर एक एक का चेंजेस लेके। ठीक उसी तरह अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा 100 हो जाता है, 100 स्टूडेंट्स, तो उससे हम लोग फिर ग्रुप में कन्वर्ट करें। ये तीनों में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी चीज आप लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द डाटा एंड हाउ वी प्रेजेंट द सेम फॉर अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स। ओके, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें मेरा क्वांटिटी कम था स्टूडेंट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो मैंने ऐसे ही प्रेजेंट कर लिया। आप लोग पूछ सकते हैं सर ये दोनों में नॉर्मल डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है,
इसमें जो है फ्रीक्वेंसी आ गया, इसमें हम लोग डायरेक्ट मार्क ले लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने 0 लेके आया, सेकंड वाला स्टूडेंट 1 लेके आया, तो ये क्वांटिटी 4 में रहेगा, यहाँ पे 50 हो गया। फिर जब 50 से मेरा इंक्रीज होकर 100 हो गया, तभी मेरा और एक सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग, हर एक ग्रुप में हम लोग कुछ कुछ को डाल के लिखते हैं। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे 70 स्टूडेंट होते हैं एंड मार्क्स, आप लोग का मार्क्स कैसे दिया जाता है, जैसे ले लो 0 to 10 20 marks, 40 50 30 10 35 29। सो हम लोग का जो स्टूडेंट 0 से 10 तक उसका 20 आया है, 10 to 20 रेंज 40, 20 to 30 रेंज 50। ये सब एक एक प्रेजेंटेशन है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डाटा। यू कैन रोट दिस so that I can explain you what's the data and what's the next terms of statistics depend upon the data wise, like group data, what is ungrouped data, and what is individuals data. So मेरे पास ग्रुप डाटा रख के उसमें थोड़ा टर्मिनोलॉजी जो है वो अभी हम लोग यूज करेंगे। लेट्स से मार्क्स, number of students, it depend upon how present the data. So first thing, if you take 0 to 10 marks, number of students was 20. If you take 10 to 20 marks, number of students was 30. If you take 20 to 30, it's 15. 30 to 40, 25. 40 to 50, 10। ये आपका जो है ग्रुप डाटा का सीरीज है। तो ग्रुप डाटा में हमारा ये पार्ट जो है मार्क्स का, अभी इसको हर एक चीज को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है 0 10, जो 0 का साइड है, इस सबको, ये पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है। और जो अपर एरिया है 10 to 20, 10 to 50, ये इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। ठीक है। अभी ये पार्ट लोअर लिमिट, ये पार्ट है अपर लिमिट, और ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं 0 to 10, ये जो मिडिल, ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। और कोई भी बोलता है क्लास विड्थ, और कोई के बोलते हैं क्लास हाइट्स। ठीक है, दोनों का बिग डिफरेंस का। और कभी कभी एग्जाम का आपको ऐसा होता है, हमको जो एक्स है, हमेशा ये जो ग्रुप डाटा को हम लोग एक्स लेते हैं, जो नंबर ऑफ आता है रिपीटेशन, उसको हम लोग लेते हैं एफ, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कभी कभी ऐसा होता है आपके एग्जाम में एक्स नहीं दिया होगा और आपको क्वेश्चन में ये बोला होगा एक्स निकालने के लिए। वो कैसे निकालोगे? ये जो डिफरेंस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो डिफरेंस का विड्थ को बोलते हैं हम लोग एक्स। जैसे कि 0 to 10, इसका फॉर्मूला है एक्स का, अगर आपको एग्जाम पे नहीं दिया है, लोअर लिमिट
जिसको मैं एल बोलता हूं शॉर्ट फॉर्म में, प्लस अपर लिमिट जिसको मैं यूएल बोलता हूं डिवाइड बाय 2। ये आपका एक तरीका है एक्स निकालने का, क्योंकि हर टाइम आपके एग्जाम में आपको एक्स नहीं दिया होगा पर आपको क्वेश्चन में ये मांग रहा होगा कि एक्स निकालने के लिए, तो वो फॉर्मूला जो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसका हम लोग बोलते हैं एक्स का। तो इस कैसा आएगा, पहला का एक्स 0 + 10/2 5। हाँ, हमेशा ये जो है सिर्फ राउंड ऑफ फिगर नहीं आएगा, कभी कभी इसको डेसिमल में भी आ सकता है, पर बस अभी के लिए मेरा जो सीरीज मुझे मांग रहा है तो मेरा अभी जो कि राउंड ऑफ है इसलिए मेरा राउंड ऑफ आएगा। तो इसमें क्या आएगा आपका, ये वाला जो है 0 to 10 में x क्या आएगा आपका 5, सेम टू सेम 15, 25, ये 35, देन 45, ये आ गया आपका x। फिर इस x को लेके नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली f, फ्रीक्वेंसी, फिर यहां से हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक चीज याद रखो, कभी कभी एग्जाम में हमारा x निकलने के लिए भी देना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ और क्लास हाइट्स क्या है। ठीक है, एक बार नोट कर लो, ये वाला पार्ट जो है अपर लिमिट, next we'll discuss about the series, how many series we have and how we'll interpret the same. Okay, so मैं अभी दो एग्जाम्पल लेता हूं। सेम let's say x1 x2, okay, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, that's it. Then frequency 10, 20, 30. Another one 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30. Frequency 10, 20, 30. ओके, सो इन दोनों में एक डिफरेंस है। देखो ये जो सीरीज है 0 से 10 से एंड होता है, फिर नेक्स्ट टाइम हमारा 10 से शुरू हो जाता है, जैसे कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है 10 से एंड होता है, फिर नेक्स्ट इट विल स्टार्ट एट 11, तो ये जो है ये कंटिन्यूस नहीं है। तो ये दोनों सीरीज को, ये जो आपका पहला सीरीज है इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, सो अभी इस दोनों में मैं अगर आपको पूछूंगा कि जिसका फ्रीक्वेंसी 20 है वो कहां से आता है 10 to 20 तक, पर ये एग्जैक्टली 10 to 20 सीरीज में आता है या 20 to 30 सीरीज में आता है, क्योंकि ये एंड होता है 20 में और शुरू भी होता है 20 से। आपको इस प्रश्न में डाउट होगा कि ये जो 20 है मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट में, वो एग्जैक्टली कौन सी सीरीज में आता है, इधर 10 to 20 सीरीज में और 20 to 30 सीरीज में। पर इसमें देखो अगर ये 20 है तो ये सीधा हमारा मिल जाता है इस सीरीज में आ जाता है 11 to 20, मतलब 20 इसके अंदर, क्योंकि ये शुरू होता है हमारा 21 से, इसलिए जो 20 मार्क्स फ्रीक्वेंसी है वो आ जाता है 11 to 20 ग्रुप में। इस तरीके से हमको इस दोनों सीरीज को और एक नाम से भी बोल सकते हैं, जैसे इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, इस सीरीज को हम लोग बोल सकते हैं
इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, सो हम लोग अभी इसे एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? अगर आपका कोई सीरीज इन कंटिन्यूस फॉर्म है, उसका जो अपर लिमिट डाटा है वो अपर लिमिट डाटा को आप लोग एक्सक्लूड करेंगे। मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए ये जो 10 to 20 है ये एंडेड होगा 19.9 और 19.5 पर। 20 जो है ये शुरू होगा नेक्स्ट ग्रुप में, ना कि इस ग्रुप में। इसलिए हमेशा कंटिन्यूस सीरीज का जो अपर लिमिट पार्ट है वो आपको एक्सक्लूड करना है, और जो डिसकंटिन्यूस सीरीज है वो आपका अपर लिमिट पार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इंक्लूड होता है। इसलिए हम लोग कंटिन्यूस सीरीज को भी एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस सीरीज को हम लोग अलग वर्ड से इंक्लूसिव सीरीज भी बोलते हैं। ये एक बार लिख लो, फिर मैं जाऊंगा एफ में। एफ में क्या क्या आता है, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, एक बार नोट कर लो। चलो, same thing. Once our X part is over, the next part will be your frequency distribution. Same example of grouped data. Let's take X 0 to 10, frequency 5, 10 to 20, 10, 20 to 30, 20, 30 to 40, 25। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम, अभी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन दो तरीके का होता है। एक आता है टॉप लाइन अप्रोच और एक आता है बॉटम लाइन अप्रोच। हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन, और इस अदर वर्ड में आप लोग बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो पहला ये क्या आएगा 5, 15, 35, 60। ओके, सो ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने लिया क्यूमुलेटिव मींस हर एक का रिपीटेशन। सो 0 to 10 में 5 लोग है, 10 to 20 में 10 लोग है, पर ये 10 to 20 में जो है ये भी ये सब मिलाकर, इसलिए हमने बोल रहे हैं रिपीटेशन जो आया 15। ठीक उसी तरह 0 से लेकर 40 तक कितने लोग है हमारा टोटल 60% विल कवर अंडर 0 to 40 मार्क्स। इस जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम लोग बोलते हैं टॉप लाइन अप्रोच। क्या बोलते हैं? टॉप लाइन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन अप्रोच। ओके, ठीक उसी तरह और एक अप्रोच आपका होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CF बोलते हैं। ओके, 25, 45, 55, 60। सेम थिंग 25, 45, 55, 60। ये हमने क्या किया, बॉटम से शुरू किया। इसका मतलब जो 30 to 40 रेंज है वो सिर्फ 25 स्टूडेंट्स है, पर 20 to 40 के अंदर कितने स्टूडेंट है? 45 स्टूडेंट्स है। 10 to 40 के अंदर 55 स्टूडेंट्स है। 0 to 40 के अंदर 60 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये अप्रोच को हम लोग बोलते हैं बॉटम लाइन अप्रोच। बॉटम लाइन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन
अप्रोच। ठीक है, सो इस सब का मेन मोटो क्या है? कभी कभी हमारे एग्जाम में हमें बस डाटा दिया होगा, जैसे आपका ग्रुप डाटा दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, पर आपको उसमें मांग रहा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, टोटल ग्रुप में क्या क्या है। उसके लिए हमको हर एक स्टूडेंट का रिपीटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं नीचे तक क्यूमुलेटिव का, उसे हम लोग बोलते हैं टॉप लाइन। अगर हम लोग ऊपर का डाटा एज इट इज रख के नीचे से हम लोग डाटा का एनालिसिस करके फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन निकालते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बटन लाइन अप्रोच। ये सब जो है ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा प्रेजेंटेशन क्या क्या आया? पहला चीज जो आया जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है, बस मेरे पास एक सीरीज दिया होगा जैसे 1 2 3 4 कंटिन्यूसली एक सेंटेंस में, उससे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अगर जो क्वांटिटी ऑफ डाटा या आप लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर वो इंक्रीज हो गया तो उससे हम लोग बोलते हैं एक अदर ग्रुप में, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इन टेबुलर इन अदर फॉर्म्स लाइक ग्रुपिंग, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा। वही ग्रुपिंग में अगर क्वांटिटी हमारा मॉडरेट है, मतलब वी कैन मैनेज टू प्रेजेंट इन ए सिंगल फॉर्म लाइक अनग्रुप फॉर्म में, तो उसका हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डाटा। अगर हमारा डाटा क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उससे हम लोग ग्रुप के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे, उसका हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, तो ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। दो तरीका, एक होता है टॉप लाइन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन और एक होता है बॉटम लाइन। एग्जाम में आप कोई भी कैलकुलेशन करो पर आपका एंड में आंसर करेक्ट ही आएगा, क्योंकि आप ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करो या नीचे से ऊपर, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्ट 60 में एंड होगा। जैसे आप लोग सब मिलाओगे तो 60 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग विल बी योर एनालिसिस पार्ट। सो एनालिसिस पार्ट में क्या होता है नॉर्मल स्टैटिस्टिक का? सो फॉर एनालाइजिंग द डाटा वी यूज्ड वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स, टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। व्हाट द डाटा वी प्रेजेंट्स, आफ्टर प्रेजेंटिंग द डाटा वी नीड टू एनालाइज देम by using various techniques or tools. Analysis of data. Okay, first one will be your measures of central tendency. Next one, dispersion, correlation, regression, index number, टाइम सीरीज, नेक्स्ट वन इंटरप्रिटेशन, इंटरकलेशन ऑफ डाटा। ये हर एक का टेक्निक है जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। हर एक टेक्निक यूज करके जो डाटा हमारा कलेक्ट हुआ है और जो डाटा कलेक्ट होके हमको एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन हुआ है, उस टेबुलर फॉर्म से लेके हम लोग हर एक डाटा को कैसे कैसे एनालिसिस करेंगे। ये हर एक चीज पहले मेजर टेंडेंसी टेक्निक में कैसा आएगा, फिर डिस्पर्शन में कैसा आएगा, फिर कोरिलेशन में कैसा आएगा, फिर रिग्रेशन यूज करके हम लोग कैसे डाटा निकल सकते हैं, फिर इंडेक्स नंबर लेके कैसे हम लोग डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। एक बार ये नोट कर लो, ये पूरा सीरीज हम लोग आपका आगे आगे एक एक टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि हर एक डाटा का टेक्निक्स होता है फॉर एनालाइजिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा, और यू कैन से फैक्ट्स एंड फिगर्स। हो गया ये सब नोट। सो जो डाटा है, जैसे लेट्स एग्जांपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हम लोग टेक्निक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, आर्थिक मीन, ये सब जो है
इस सब को हम लोग यूज करके हमारा डिसीजन और एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक उसी तरह हम लोग डिस्पर्शन लेके कैसा एनालिसिस करेंगे, कोरिलेशन यूज करके कैसा एनालिसिस करेंगे डाटा का, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर। तो इसका मेन मोटो क्या होता है, जो डाटा हमने कलेक्ट किए पहले कलेक्शन कर लिए, फिर वो कलेक्शन डाटा को हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे इन टैबुलर फॉर्म और इन ग्राफिकल फॉर्म। तो टैबुलर फॉर्म में हमने क्या किया सर, दो सीरीज आ गया, एक आ गया आपका इंडिविजुअल सीरीज और एक आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और यू कैन से ग्रुपिंग ऑफ सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में कौन सी उसमें यूज होता है, अगर हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ डाटा जो नंबर्स वो अगर लेस है जो कि हम लोग इंडिविजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी या नंबर ऑफ डाटा इंक्रीज है तो आ जाता है फ्रीक्वेंसी, जिसका हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन। तो फ्रीक्वेंसी में अगर मॉडरेट डाटा इंक्रीज हुआ है तो हम लोग अनग्रुप डाटा में उसको डाल के एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमारा जो नंबर ऑफ डाटा वो अगर बहुत ज्यादा है, जो जैसे कि हम लोग whether we can present in individual series or we can present in ungroup series, we need to present them as a grouping or we can say group data। so उसको जब प्रेजेंट करते हैं वो एक सीरीज को ग्रुपिंग डाटा बोलते हैं। वो ग्रुपिंग को प्रेजेंटेशन होने के बाद उसका जो ग्रुप का आता है, जैसे लोअर लिमिट बोला, अपर लिमिट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस का हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये सब हर एक चीज आपको चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको इस सब स्टैटिस्टिकल वर्ड देता है लाइक क्लास इंटरवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास इंटरवल मतलब है 0 10 नहीं, 0 से 10 तक जो आता है वो आता है क्लास इंटरवल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स। कभी कभी एक्स हमको चाहिए, वो भी टेक्निक बताया। फिर आपको मैं बोला क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेशन करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, वो कैलकुलेशन होने के बाद आपका फ्रीक्वेंसी आता है। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टॉप लाइन अप्रोच, नेक्स्ट वन विल बी योर बॉटम लाइन अप्रोच। तो उसमें अगर हम लोग शुरू से शुरू करके क्यूमुलेटिव करेंगे हर एक डाटा का, उसका हम लोग बोलते हैं टॉप लाइन अप्रोच। अगर हम लोग नीचे से एंड से शुरू करते हैं अब तक, उसे हम लोग बोलते हैं बॉटम लाइन अप्रोच। फिर आपका आ गया सीरीज में दो टाइप का, एक आता है कंटिन्यूस सीरीज, अदर वन विल बी योर डिसकंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज आल्सो। एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूस सीरीज है जब भी हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए उससे डाटा लेते हैं, उसका जो ग्रुप का अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड रहता है, मतलब उसको एक्सक्लूड करके हम लोग डिसीजन मेकिंग लेंगे। इसलिए हम लोग कंटिन्यूस सीरीज को भी एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था वो था डिसकंटिन्यूस सीरीज। डिसकंटिन्यूस सीरीज हमारा अपर पार्ट भी इंक्लूड होके हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। ये हो गया आपका। फिर आपका आ गया एनालिसिस। सो आफ्टर डाटा कलेक्टिंग देन डाटा प्रेजेंटेशन, देन वी नीड टू एनालाइज ईच एंड एवरी प्रेजेंटेड डाटा टू अस। सो वो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ 8 टेक्निक्स है नॉर्मली, जो कि हम लोग आगे आगे डिस्कशन करेंगे। सो आपका पहला टेक्निक जो है वो है मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें क्या क्या आता है, इसका कैलकुलेशन क्या क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए शुरू करेंगे। आपका मेजर टेंडेंसी, फिर आपका डिस्पर्सन, फिर कोरिलेशन, फिर रिग्रेशन, फिर इंडेक्स नंबर। ये 1 by 1 मैं शुरू करूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय।